फॉर बजाज और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामगियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। प्रदीप जी अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। यस बस थोड़ी देर में जो 41 मजदूर अंदर उस सुरंग में फंसे हुए थे उत्तरकाशी में, बस निकलने ही वाले हैं। मुझे लगता है 1-1.5 घंटा और लगेगा। All best news for the entire country. Yes, all the NDRF teams and the rescue teams and everybody else is right there. और बस पहुंच गए वहाँ पे, बस उनको निकालना है। And I think it's fantastic, really fantastic the fact that they've been taken out. And after that, I hope there will be a proper audit as to how this tunnel could be made without a safety tunnel. और उसके बावजूद के नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी रेड फ्लैग्स लगाए थे कि भाई आप ये इकोलॉजिकली इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सॉफ्ट रॉक है, गिर जाएंगे, गिर सकती है वगैरह वगैरह। क्योंकि देखिए साहब, हिमालय में सुरंग बनाना मतलब खतरे का काम है। Exactly. क्योंकि इट्स अ वेरी यंग माउंटेन रेंज इन जियोलॉजिकल टर्म्स एंड it's got very soft rock and it collapses. So I hope the Uttarakhand government takes a second look at the way their development plans are proceeding. क्योंकि देखिए साहब, उत्तराखंड जो है वो देवभूमि है, देवभूमि है, याद रख लीजिए। तो वहाँ पर जिस प्रकार की का विकास प्लान कर रहे हैं हम लोग, शायद उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। This is one way. The other way, the people are looking at it that this mountains, though we have caused severe damage to the mountains, these mountains have actually protected these people from there, from anything happening to them. अपने गोद में समा कर रखे हैं till they are taken out and they are taken out for safety. Yeah, Though whatever harm we have caused to the mountains have been good to mankind. That's right. To So the human the race. best thing to do is to fill up the tunnel, Yes. put all that stone and rock and everything else right back into the mountain, और पर्वत की माफी मांग करके वहाँ से निकलिए। सीधी बात है, वापस जंगल वहाँ पर आने दीजिए। And you know what has happened? All the soil has been loosened. That is the problem. There are landslides. There are so many other things, and these guys, that medical team over there, the NDRF team, the team of the Madras sappers, those Australians who operated the auger machine, the guy who were the rat miners who have come in from Dehradun, from Delhi and from Meghalaya. Yes, They've done a wonderful job, absolutely wonderful job, and they must be congratulated, really and truly. They are the real heroes. और वहाँ में अभी क्या हो रहा है प्रदीप जी, बर्फबारी हो रही है, it started to snow. So I hope these chaps come out completely unharmed. But till now the nature has been very kind and it has helped the entire movement to take place, though the machines have failed us, but nature has protected these people. लेकिन आज सर वहाँ पे बर्फबारी शुरू हो गई है, आज पहली दिन, and I think today is the day when all these boys will come out. That will be a great day. That will be A great day for the country. That will be fantastic, really and truly fantastic. Wow. I hope it happens, and I hope it happens very, very quickly. Exactly. And at the moment with us from the BJP, Mr. Pradeep Peshkar. Pradeep Peshkar साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। प्रदीप पेशकर साहब नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम। प्रदीप पेशकर साहब ये बताएं, माशाल्लाह आज मैं तो उसका इंतजार कर रहा हूँ, आई एम श्योर पूरा देश इस चीज़ का इंतजार कर रहा है कि कब खबर मिले कि वो जो 41 हमारे वर्कर्स जो हैं बेचारे अंदर फंसे हुए हैं, लड़के जो हैं वो कब बाहर आएंगे। बस मुझे लगता है बस बस बाहर आने ही वाले हैं, आधे घंटे में मुझे लग रहा है कि पहला बाहर आ जाएगा अभी। राइट, लग रहा है सर। इट्स अ वेरी गुड डे, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आज बहुत अच्छा दिन है, वेरी एंड वंडरफुल। लेकिन सर बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ आई है महाराष्ट्र से, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर। नागपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी मंदिर के अंदर वो 2 दलितों बेचारे को मार दिया, मतलब ये क्या है सर, ये क्या हो रहा है? ये जिस प्रकार से अभी वो रिजर्वेशन का जो प्रोटेस्ट चल रही हैं, मतलब ये तो ऐसे लग रहा है कि कोई करवा रहा है। प्रदीप पेशकर साहब वेरी फ्रैंकली, पिछली बार भी जो हमारी बात होती मुझे तो यही लग रहा है कि इसके पीछे किसी का हाथ है, जान करके या तो सरकार की छवि धूमिल करने के लिए या महाराष्ट्र में तनाव पैदा करने के लिए ये सब चीज़ें करी जा रही हैं। मुझको ऐसा लग रहा है कि एकदम फौरन कहाँ से अरे धनगर समुदाय खड़ा हो जाता है, उधर से कोली समुदाय खड़ा हो जाता है, माली समुदाय खड़ा हो जाता है, इधर से लिंगायत आ जाते हैं, उधर से मुसलमान खड़े हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है?
प्रदीप पेशकर साहब, मुझे तो ऐसा लगता है इसके पीछे बहुत बड़ी कोई गहरी कंस्पिरेसी है, बताएं सर। प्रदीप पेशकर साहब। मुझे लगता है जी। मुझे लगता है कि हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, आपकी आवाज फर्स्ट क्लास आ रही है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के घटनाएं को बिल्कुल। हेलो जी बोलिए बोलिए सर, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। मुझे थोड़ा क्लियर नहीं, डिस्टर्बेंस आ रहा है आपकी आवाज में। नहीं, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, बोलिए तो सर। इस प्रकार के घटना से इस प्रकार से घटना से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। जी। हेलो जी। हेलो जी, आई कैन हियर यू सर, आई कैन हियर यू। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। इस क्या प्रकार आपको की मेरी आवाज आ घटनाएं रही कहीं भी है? हो महाराष्ट्र में, मुझे ऐसा लगता है। जी बोलिए, आपको डिस्टर्बेंस ऐसा लगता है? आवाज में आपके। कैन वी गेट द ऑडियो क्लियर प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, द प्रोडक्शन टीम। प्रदीप पेशकर साहब को शायद हमारी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है, शायद। Can we do it again, please? I think Mr. Pradeep Peshkar has an audio issue. मुझे जी बोलिए सर, बोलिए, आप बोलिए। हाँ, मुझे लगता है कि इस प्रकार के घटना से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। इस प्रकार से थोड़े थोड़े न्यूज टुकड़े टुकड़े में लाकर कोई महाराष्ट्र का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हमारे गृह मंत्री देवेंद्र जी बिल्कुल उसके बारे में क्लियर है कि इस प्रकार के घटना को अंजाम देने वालों पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। ये ऐसा है कि चुनाव आ रहा है, कहीं ना कहीं से ये सरकार को डिस्टर्बेंस करे, ये ऐसी मंशा किसी की हो सकती है। लेकिन ये जो आरक्षण का मुद्दा भी है तो उसमें कोई आंदोलन वाली बात नहीं है, क्योंकि सरकार भी वही चाहती है। सरकार पूरी तरीके से आंदोलनकारियों के साथ में है। अभी मराठा आंदोलन का अगर हम लेंगे तो उसके लिए जो मागास वर्ग आयोग की स्थापना है वो भी हो गई। अभी जो प्रोसेस है वो चल रही है, ओबीसी के टका कम करके उसमें से हम नहीं देंगे, ये जो भुजबल जी की डिमांड है उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्लियर किया है, 2-3 बार क्लियर किया है। अगर हम वही टेप मीडिया में रोज बजाते रहेंगे और दोनों तरफ से वही बोलते रहेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो काम सरकार दिल से करना चाहती है उस पर कमिटेड है और सरकार बिल्कुल ये आरक्षण का मुद्दा बहुत सही तरीके से किसी को कुछ भी तकलीफ न हो इस प्रकार से सुलझाएगी। मुझे लगता है कि न्यायमूर्ति भी काम पर, वो जो समिति है शिंदे समिति, वो भी काम कर रही है। अलग अलग समितियां जो सरकार में बनी है वो भी काम कर रही है। 1 लाख से ऊपर ऑफिसर्स उस काम में लगाए गए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की बाजू रखना है उसके लिए भी पूरी तैयारी की जा चुकी है। मुझे लगता है इसमें कुछ अभी बाकी नहीं है, सिर्फ काम पूरा एग्जीक्यूट होने के लिए जितना समय लगना चाहिए उतना तो लगेगा ही। और मुझे लगता है कि ये भी डिमांड जिनकी है उनको भी समझ में आ गया है कि अभी ये पूरी तरीके से अपने को मिलने वाला है। आरक्षण इतने दिन नहीं मिला, रिजर्वेशन, इसका कारण वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार की सरकार ये दे सकती है, इसीलिए तो डिमांड है। अपनों के पीछे ही डिमांड करते हैं ना लोग, अपनों के लिए ही डिमांड करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात कोई अड़चन पैदा करने वाली नहीं है। इसमें सबका समाधान करने के लिए उचित कदम सरकार उठा रही है। पेशकर साहब, भुजबल साहब ने जो आपत्ति जताया था, उन्होंने कहा कि गांव बंदी का बोर्ड अभी भी हर जिला हर गांव में जहां जहां मराठा समाज ने लगाया था उसको निकालने की जरूरत है, बिकॉज इट्स क्रिएटिंग अ वायलेंट एटमॉस्फेयर, एक हेट्रेड का एटमॉस्फेयर वहां पर क्रिएट कर रहे हैं। और बहुत सारे ओबीसी के समाज, पिछड़े समाज उस क्षेत्र में जाने से डर रहे हैं, नेता लोग जा नहीं पा रहे हैं।
तो भले देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर अंडर कंट्रोल, एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल, गांव बंदी का बोर्ड हटना बहुत जरूरी है ताकि एक एटमॉस्फेयर ऑफ गुड। भले आपने कहा कि जो लाइकी शब्द मनोज जरंगे पाटिल ने वापस ले लिया है, ओबीएस समाज के जो बबन राव तायडे साहब ने भी अपना पूरे वापस ले लिया है, बट ये गांव बंदी का बोर्ड है वो हटना बहुत जरूरी है पेशकर साहब। बिल्कुल 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 ठीक है कि उससे वो बोर्ड देखते हैं। अभी कोई किसी गांव में जाने के लिए कोई किसी को रोक नहीं रहा है, कोई किसी ने जबरदस्ती नहीं की है कि आएंगे तो हम आपको आने नहीं देंगे। सिर्फ बोर्ड की अभी अहमियत बची नहीं है ना। भुजबल साहब का भी ठीक है, बोर्ड अभी जरूरत नहीं है क्योंकि इस प्रकार का जो आंदोलन हो चुका उसका समाधान भी हो गया। अभी जरांगे पाटिल साहब ही सब जगह जा रहे हैं, हर जगह उनकी सभा हो रही है, भुजबल साहब भी जा रहे हैं, कोई किसी को रोका है, और हम भी जा रहे हैं हर जगह पर। तो इसका यह है कि सिर्फ इररिलेवेंट बोर्ड रखा है, अभी उसकी अहमियत खत्म हो गई। उन्होंने क्या बोला है कि पुलिस को बोला है कि ये उसकी जरूरत है नहीं, निकाल दीजिए। तो वो पॉजिटिव सेंस में हमने लेना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी प्रकार से सूचना करेगी। अच्छा, यहां पर आज वाइस प्रेसिडेंट जगदीश धनखड़ साहब ने मोदी साहब को युग पुरुष बोला, युग पुरुष मोदी साहब, नरेंद्र मोदी, और अचीवमेंट ऐसे ही है, बड़ा बड़ा अचीवमेंट है। आप 370 आर्टिकल 370 से लेके राम मंदिर से लेके सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, यूपीआई, हर चीज को देखेंगे बीजेपी की तरफ से वो जस्टिफाइड है, युग पुरुष। मगर महात्मा गांधी को यह भी कहा धनखड़ साहब की महापुरुष ऑफ द लास्ट सेंचुरी, महापुरुष। मगर कांग्रेस और जितने ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनको टोटल विरोध है कि आपने मोदी जी को युग पुरुष कैसे बोल दिया। युग पुरुष मोदी जी आप कैसे जस्टिफाई करते हो पेशकर साहब? हाउ डू यू जस्टिफाई मोदी जी एज युग पुरुष? इज वाइस प्रेसिडेंट राइट? ऐसा है, कहीं उन्होंने महात्मा गांधी जी और मोदी जी की तुलना नहीं की है, कंपैरिजन नहीं किया है। ये बात हमें समझ में लेनी चाहिए। महात्मा गांधी का जो बड़प्पन है, उनका जो स्थान है, वो स्थान सबके मन में श्रद्धेय है और रहना भी चाहिए। और मोदी जी का स्थान अभी जो पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में एक निर्माण किया है उन्होंने, तो वो भी युग पुरुष से कुछ कम नहीं है। क्योंकि आप देखिए 450 साल की लड़ाई हो रही थी और राम मंदिर के लिए, आज रिजल्ट मिला कोर्ट से और उसी के 3 साल के अंदर राम मंदिर बड़ा वहां पे बन रहा है। काशी का कॉरिडोर देखिए आप, महाकाल का कॉरिडोर देखिए, सोमनाथ देखिए, हमारा सरदार पटेल जी का स्टैच्यू देखिए। ये सारे जो हम लोग ये जब देख रहे हैं ना, तो ये हमारे मान बिंदु हो गए हैं। ये हमारे मान बिंदु, आस्था के विषय है, मान बिंदु है। हर जगह पर आप देखिए युगानुयुगे काम नहीं हुआ, वो काम सालों साल वो काम नहीं हुआ, वो काम करने की हिम्मत मोदी जी ने दिखाई और बड़े पॉजिटिव तरीके से ये काम इंप्लीमेंट हो भी रहा है। उसके साथ साथ श्रद्धा के साथ साथ विकास का भी काम है, विकास के साथ साथ दुश्मनों को पांव तले दबाने की भी बात है। ये सारी चीजें एक साथ जो करता है उसे तो हम दैवी पुरुष ही मानना चाहिए, युग पुरुष ही मानना चाहिए। क्या गलत कहा है उन्होंने? और हर कोई मानता है। कांग्रेस वालों को ये नहीं पसंद आएगा या उनको नहीं हजम होगा, ये समझ सकते हैं, लेकिन इस पर कोई जनता डिबेट सुन ही नहीं सकती कि वो युग पुरुष है या नहीं है। ये सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी इलेक्शन है तो हमें भी सुनने की आदत है, भाई बोलते रहो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो काम तो रुकने वाला है नहीं। और मैं 1-2 कहावतें बोलने वाला था, लेकिन वो टीवी पे कहना ठीक नहीं है। मोदी जी चलेंगे अपनी चाल, अभी क्या करेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलिए। नहीं, ठीक है, मोदी जी चलेंगे अपनी चाल, इतना ही मैंने बोला। बाकी लोग बोलते रहेंगे, बोलने नहीं, ये बात आप तो बोल दुरुस्त सकते हैं है अच्छी तरीके। प्रदीप पेशकर साहब, ये जो बात आपने कही है बिल्कुल दुरुस्त है। आर्टिकल 370 विड्रॉ करने की हिम्मत और किसी में नहीं थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डिबेट का विषय नहीं है। सिर्फ अकेले मोदी जी की सरकार ही कर सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहां तक कि ये कहा गया था कि आर्टिकल 370 विड्रॉ करके देखिए, खून की नदियां बहेंगी, ये होगा वो होगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तिरंगा लहराने के लिए हाथ नहीं बचेगा, ये भी हमने सुना है और याद भी रखा है जी। सिर्फ सुना नहीं है, वो याद भी रखा है। आगे देखिए क्या क्या होता है।
आगे क्या होने वाला है सर? आगे देखिए क्या क्या होता है, मतलब क्या होने वाला है बताइए। नहीं नहीं, जो ऐसे बोलेंगे उनको जनता जवाब देगी ना। कश्मीर में हमने बड़े नेता से सुना ये चीज, तो जी। अभी कश्मीर की जनता उनको दिखाएगी। दुरुस्त बात, एब्सोल्युटली ट्रू। प्रदीप जी, दीप ज्योति पर ब्रह्मा, मोदी साहब ने कल जो पूरे दीप ज्योति पूरे लगाए थे सब जगह, उस बोले दीप ज्योति पर ब्रह्मा, दीप सबको जोड़ता है। मोदी जी का कहना दीप सबको जोड़ता है, विजय पथ पर लेके जाता है और डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है, मोदी साहब का कहना है। मोदी साहब ने कहा कि रास्ते में दिक्कतें हैं तो 100 साल में सबसे बड़ी दिक्कत कोरोना का, वो इस दीप जला के हमने दूर कर दिया, मोदी साहब ने कहा। और मगर बाकी लोग आलोचना करते क्या दीप जलने से क्या कोरोना चला जाएंगे वगैरह वगैरह। मगर ये डेवलपमेंट की और जिस प्रकार से जेपी नड्डा आगे जाके बोलते हैं कि इंडिया नंबर 2 इन स्टील, नंबर 3 इन ऑटोमोबाइल एंड वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, नड्डा साहब का कहना, मोदी साहब। तो हमने ट्रेडिशन को भी साथ में रखा, डेवलपमेंट को भी साथ में रखा, यही विजय पथ है, मोदी साहब का कहना है। बट कांग्रेस को आलोचना करने का जरूरत है कि दिया जला के कोरोना तक कैसे जाएंगे। तो पेशकर साहब, हाउ यू जस्टिफाई दैट? नड्डा साहब, मोदी ऐसा है, साहब। आपको ये पता होगा, भारतीय जनता पार्टी की इतिहास में जाने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का पहला संस्करण था जनसंघ, मतलब जनसंघ से ही भारतीय जनता पार्टी आई। जी तो जनसंघ का जो निशानी थी वो थी दीप। जी और हम लोग ये कहने वाले लोग हैं, चलो जलाए दीप जहां जहां वो अभी भी अंधेरा है। जिस जिस झोपड़ी में अभी अंधेरा है वहां भी दीप जलना चाहिए, वहां के लोगों के पेट में सुख की रोटी और सुख की नींद मिलनी चाहिए। ये कहने वाली पार्टी जब विकास के रास्ते पे दौड़ती है तो आपने जितने भी काम गिनाए वो करते करते दीप जलाने का महत्व क्या है ये भी हमारा संस्कार हमने भूला नहीं है। हमारा संस्कार में ही है कि दिया जलाने से ही, दीप से उजाला और उजाले में हमारा विकास। ये जो सब चीज है, हम सूर्य की उपासना करने वाले लोग हैं। हिंदू संस्कृति का पूरा आप मतलब कांग्रेस वालों को ये समझ में आ ही नहीं सकता है कि दीप का और दिया का महत्व क्या है, ज्योति का महत्व क्या है। उनको मशाल या हम विध्वंसक दृष्टि से आग मालूम है, लेकिन दिया की ज्योति मालूम नहीं है। तो ये दोनों में फर्क है। मुझे लगता है कि हम लोग दीप लगाने वाले और एक दूसरे के मन में दिया जलाने वाले लोग हैं। तो मोदी जी ने हर एक के मन में कॉन्फिडेंस का दिया जलाया। ये तो प्रतीकात्मक था दीप जलाना, लेकिन हर एक भारतीय वासियों को कोरोना के काल में मन में कॉन्फिडेंस का दिया, विश्वास का दिया जगाया। और हम भारतीय लोग ही इसकी पूरी तरीके से उच्चाटन कर सकते हैं, कोरोना हमारे पास से हार कर जाएगा, ये बात ठान ली। और पूरे भारतवर्ष के हर एक घर ने दिया जलाया, थाली बजाया। उन्होंने थाली बजाने का भी वो आलोचना की थी, हंसी मस्करी की थी, लेकिन आपको मोदी जी के हर एक आह्वान पर घर का बच्चा बच्चा बाहर आके दिया जला रहा था, थाली बजा रहा था। इसका मतलब यह है कि हमारा पूरा देश एक ही डायरेक्शन में सोचता है। सभी 140 करोड़ की ताकत, मन की ताकत एक ही दिशा में लगती है, और सबका जब एक साथ आना होता है तो विजय निश्चित है। तो हम लोग मोदी जी के विचार पर और मोदी जी के काम पर इतनी श्रद्धा रखते हैं, सिर्फ विश्वास नहीं तो श्रद्धा रखते हैं। वैसे ही पूरी दुनिया आज श्रद्धा रख रही है। प्रदीप पेशकर साहब, भाई आपने जनसंघ की बात करी। जनसंघ का बड़ा पुराना स्लोगन होता था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, आप तो बड़े यंग हैं। हाँ। आपको कैसे याद होगा? दीप से दीप जले, वोट से देश बने। उस वक्त कांग्रेस के लोग हंसा करते थे, ये जनसंघ वाले क्या करेंगे। हमें याद है, हम तो बच्चे हुआ करते थे उसको। लेकिन आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि वो स्लोगन, दीप से दीप जले, वोट से देश बने, और उसमें मुझे याद है कि भारत का एक नक्शा था, उसके ऊपर हर जगह पे दीप जल रहे थे, और लगता है कि अब वो साकार होता हुआ दिख रहा है। लगा ऐसा रहा है? आपको क्या लग रहा है पेशकर साहब?
आई डोंट थिंक ही कैन हियर मी। पेशकर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल साकार हो गया है। कांग्रेस वालों ने तो दो से कांग्रेस मुझे तो याद नहीं है, मैं तब राजनीति में था नहीं। जी, आ रही है, मेरी आ रही है? Yes. आ रही है आवाज, बढ़िया आ रही है, बोलिए। कांग्रेस वालों को आलोचना करने का अधिकार भी है, हक भी है, लेकिन लेकिन उन्होंने दो खासदार जब हमारे लोकसभा में थे तब भी आलोचना की थी, तब भी हंसी उड़ाई थी, जी, उड़ाई थी। तो उनकी हंसी का अभी क्या हुआ? 400 से 40 पर आ गए, तभी भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी दिया और दीप का आप हंसी उड़ाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये उनके कंपैरिजन में हम लोग कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मोदी जी पूरे विश्व के पटल पर अभी सबसे ताकतवर राजनेता के रूप में उभरे हैं, और 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी करने के लिए जिस प्रकार से रिफॉर्म की जरूरत है, और अंतर्गत जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है वो किस स्पीड से करने की जरूरत है, और संकटों पर किस तरीके से मात करने की जरूरत है, ये तीनों चीजों पे एट ए टाइम सोचने वाला और काम करने वाला और रिजल्ट देने वाला प्रधानमंत्री हमें मिला है। तो और तीसरी कांग्रेस चीज ये है, कहने इसका पर, साथ- हंसी मजाक पर जी, और तीसरी चीज ये है कि अभी जो राज्यों आवाज के आवाज चुनाव क्लियर हुए नहीं है हैं, सर कुछ। जो राज्यों के चुनाव हुए हैं अभी 3 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा। सर 3 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा। आपको आवाज आ रही है सर? सर, कैन यू हियर मी मिस्टर पेशकर? बिल्कुल, हाँ आ रही है, आ रही है। तो अभी क्या है कि अभी जो सर्वे आ रहे हैं वो दिखा रहे अभी हैं, आवाज आ रही है। अभी जो सर्वे आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि बीजेपी आगे हाँ है। 3 तारीख को रिजल्ट है। अभी जो सर्वे आ रहे हैं वो कहते हैं कि बीजेपी आगे है। पहले ये दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस आगे है। ये करिश्मा कैसे हो गया कि बीजेपी अब आगे कैसे हो गई? पेशकर साहब बताएं। पेशकर साहब, सर सवाल ही नहीं सुनने को आया। अच्छा, 3 रिजल्ट तारीख क्या को होने वाला है रिजल्ट आपके सुना। मुताबिक? हाँ 3 तारीख को रिजल्ट है, इतना ही सुना मैंने, सवाल नहीं समझ में आया। सवाल है कि 3 तारीख को क्या रिजल्ट आने वाला है आपके मुताबिक? हर सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, क्या बात है? इतना पक्का विश्वास मेरा नहीं तो हर मतदाता का है। हर मतदाता का मैं बोल रहा हूं, 5 राज्यों में हर मतदाता का यही है। जिसने मतदान इधर भाजपा को नहीं किया वो भी बोल रहा है कि बिल्कुल भाजपा की विजय निश्चित है। पेशकर साहब, फडणवीस साहब ने लगातार इस प्रकार से जो आरोप लग रहा था, फडणवीस साहब ने कहा कि संविधान में बदलाव, द बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का कोई बदल नहीं सकता। ये उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत, राहुल गांधी बार बार बोल रहे कि मोदी साहब कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को ऑल्टर कर लेंगे। फडणवीस साहब ने कहा बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का सवाल ही नहीं उठता। इलेक्शन जब आता है ये लोग बोलने लगते हैं। दूसरा बोलते हैं कि मुंबई को अलग करने वाले महाराष्ट्र को, बोले दोनों नहीं होगा, न मुंबई महाराष्ट्र से अलग होगा न संविधान को बदलेगा, ये दोनों काम नहीं होगा। बार बार फडणवीस साहब क्लियर कट बोल के इस चीज को समाप्त कर दिया। आप कैसे देखते हो विपक्ष के लगातार आरोप पर? अभी मुझे तो हंसी आती है, इन्होंने क्या अभी रूप अख्तियार किया है। उद्धव ठाकरे जी हो या संजय राउत जी हो या आदित्य जी हो या हमारे कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी हो, हम लोग उनको ये पता चल गया कि हम लोग पब्लिक को कन्विंस नहीं कर सकते, तो क्यों ना कंफ्यूज करें। तो कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज करने का काम कर रहे हैं। और हर बार बोलने से, अभी तक उनको नहीं समझा कि हर बार बोलने से कुछ होगा नहीं। और संविधान के बदलाव की बात का पहले मैं जवाब दूंगा। अभी तक 106 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गई है, उसमें से 80 से ज्यादा तो कांग्रेस सरकार ने की है। फिर तब क्या किया राहुल गांधी जी ने, तब क्या बोलेंगे? तो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का बदल नहीं सकता, ओनली अमेंडमेंट इज पॉसिबल। और अमेंडमेंट इज पॉसिबल उसको तोड़ना कहते हैं, तो आपने तो 80 के ऊपर बार तोड़ी है ना
फिर इसका जवाब दे दो पहले। और हर बार अगर इसी बात पे हम लोग कंफ्यूज करते रहेंगे जनता को, तो मुझे लगता है कि जनता अभी सुशिक्षित है, सब शिक्षित जनता है, वो इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। फिर दूसरी बात आ गई मुंबई तोड़ने की। जी भाई तोड़ के किधर लेके जाएंगे? तोड़ के लेके किधर जाएंगे? हाँ, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है इनको। अभी इनको काम तो बचा नहीं है, और मुझे लगता है कि इनको कुछ अभी समझ ही नहीं रहा है कि बोले तो क्या बोले। हर बार उद्धव जी का भाषण आप पिछले 1 साल से सुनो, एक ही है, गद्दार, खोखे, और क्या है, मुंबई तोड़ने का है। अरे ये क्या बात हो गई? कुछ तो विकास की बात करो। अगर हमारे पास सत्ता आ गई तो हम ये करेंगे, हम इस प्रकार से सूचना दो, आप मजबूत विरोधी पार्टी का काम निभाओ, आप कुछ सजेशन दे दो, आपकी भी सजेशन मानी जाएगी। आपने भी मुख्यमंत्री के पद पर काम किया है, आपको भी कुछ ना कुछ तो समझता है उसमें का, आप सजेशन दीजिए, सरकार सुनेगी आपका, और उसी अच्छा है तो उसको अमल बजावनी करेगी। तो मुझे लगता है कि ये छोड़ दिया और मुंबई तोड़ रहे, मुंबई तोड़ रहे। कहां से तोड़ रहे भाई मुंबई? अब टूटेगी कैसे? कौन तोड़ेगा मुंबई को? किस प्रकार से टूटेगी? क्या आप ही थे जोड़ने वाले? हाँ, सब ठेका मुंबई का लेके रखा है। कि क्या हुआ है, 25 साल तक भाजपा के मदद से इन्होंने महानगर पालिका को लूटा, और महानगर पालिका लूटने का अभी धंधा बंद हो गया। तो अभी बोले तो क्या बोले? अभी ये उनको कुछ काम तो करने के लिए उनके पास कुछ न है, पहले भी था नहीं, अभी भी नहीं है। और जो मिलने वाली खुराक थी वो बंद हो गई। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि खुराक बंद होने की वजह से ये तिलमिला गए हैं और इस प्रकार से भाषा बोलने लगे हैं। देवेंद्र जी ने कहा है मुंबई उनकी भाषा में, देवेंद्र जी का भाषा ये नहीं है, लेकिन उनकी भाषा में उनको समझता है, इसलिए किसी का बाप भी मुंबई तोड़ नहीं सकता है, और बाप का बाप भी आए तो तोड़ नहीं सकता है। इससे ज्यादा कहे क्या? अगर कोई इसी प्रकार से घिसा पिटा कैसेट लगा के रखेंगे तो लोग भी सुनना अभी बंद करेंगे। मुझे लगता है कि इनके समझ में आ गया। सवेरे 9 बजे का उनका जो रिकॉर्डिंग चलता था वो अभी बहुत मराठी चैनल पर बंद हो गया, क्योंकि लोग 9 बजे से 10 बजे तक चैनल ही नहीं देखते हैं कि राउत आ जाएंगे ऐसा करके। तो उनको समझ में आ गया, अभी वो थोड़ा कम हो गया, या दूसरा कुछ होगा, मुझे पता नहीं। अरे उन्होंने तो बच्चों की खिचड़ी तक नहीं छोड़ी, इनका क्या हक है बोलने का? तो राजनीतिक कमेंट बोलना मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए थोड़ा मैं सभ्य भाषा में उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि इनके इस एलिगेशन में कोई सच्चाई नहीं है। कोई मुंबई तोड़ेगा नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन बदलेगा नहीं। और बैरिस्टर प्रकाश अंबेडकर जी ने भी कहा कि इस प्रकार से काम चल रहा है, तो वो तो बैरिस्टर है, उनको पूरा पता है, वो ज्यादा लॉ समझते हैं। और देवेंद्र जी भी लॉ स्टूडेंट है, वकील है खुद, तो उनको भी अच्छी तरह से जवाब देना आता है। मुझे लगता है अगर देवेंद्र जी का जवाब सबने सुनना चाहिए, उससे ही सबकी मन की शांति हो जाए। क्या बात है पेशकर साहब, दूसरा विजय विदेटीवार जी का कहना है कि पहले दुष्काल का समस्या था, अभी अवकाल जब हो गया, बारिश वगैरह हो गया, उससे बहुत तकलीफ होने वाला है, हो गया है। ग्रेप्स, ऑरेंजेस, पूरे मराठवाड़ा विदर्भ में ग्रेप्स और ऑरेंज का समस्या इसलिए हो गया, पूरे डिस्ट्रॉय हो चुका है अवकाल के वजह से। और विजय विदेटीवार कह रहे हैं कि सरकार से झूठे वादे कर रहे हैं। पहले बोला कि 2500 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहे हैं, हम लोग बांट देंगे, वो हो गया। फिर बोला कि 50,000 हम लोग सबको देंगे, वो नहीं दिया। फॉल्स प्रोमिसेस बहुत हो रहा है, पंचनामा में बहुत टाइम लग रहा है, पंचनामा के लिए लोग पेशेंस नहीं है। तो सरकार को कुछ करना चाहिए, तो सरकार नहीं कर रहा है। तो हाउ डू यू सी दैट? ये अवकाल और दुष्काल, क्या महाराष्ट्र सरकार ढंग से काम नहीं कर रहा, किसान को न्याय नहीं मिल रहा है? पेशकर साहब, नहीं, ऐसा है कि ये बारिश, जो अवकाल में बारिश आ गया, अभी बारिश का मौसम है नहीं, और इसमें बारिश आ गया और वो सडनली परसों के दिन चालू हुआ। मतलब 48 आवर्स हो गए कि बारिश हो गई, और विद इन 12 आवर्स माननीय मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी ने पंचनामा के आदेश दिए, काम शुरू भी हुआ है। लेकिन ये क्या होता है, आज बारिश हो गया, उधर बारिश चालू है, इधर इनकी टेप रिकॉर्डर चालू हो गया, कि नुकसान तो हुआ है, बिल्कुल मानता हूँ। मैं नासिक से हूँ, प्याज का नुकसान हो रहा है, ओनियन का नुकसान काफी हुआ है, ग्रेप्स का नुकसान हुआ है,
विदर्भ में ऑरेंज का हुआ है, मराठवाड़ा में बाकी पैदावार है उसका नुकसान हुआ है, किसान का नुकसान काफी हुआ है, उसकी भरपाई जरूर सरकार करेगी। जो इंश्योरेंस है वो तो उसी के लिए ही है, 1 रुपए में इंश्योरेंस का स्कीम दिया है इस बार तो सरकार ने, तो इसलिए इंश्योरेंस है तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी नुकसान भरपाई के लिए पंचनामे शुरू है और वो जो पंचनामा होगा उसका रिजल्ट मिलने में 2-3 दिन 4 दिन लगते हैं। जो हवामान ये है प्रेडिक्शन है उसमें 5 दिन का समय दिया गया है कि 5 दिन में बारिश होगी ये पूरा, तो बारिश में और कैसा कैसा नुकसान होगा वो भी देखना पड़ेगा, सब जोड़ना पड़ेगा और प्रोसेस के साथ ही होगा। अभी निसर्ग के सामने, नेचर के सामने तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उसके लिए उनका कहना सही है वडेट्टीवार जी का कि नुकसान हुआ है, नुकसान का सेंसिटिविटी के साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश भी दिए हैं, कृषि मंत्री उस काम के लिए लगे भी है, सब टीम लगी है, लेकिन तुरंत दे दो और तुरंत पूरा का पूरा होना चाहिए, तो ऐसा ये प्रोसेस में होता नहीं है, उनको भी पता है, लेकिन कुछ हंगामा खड़ा करना, कुछ मन में दुविधा पैदा करना ये उनका काम है। अभी उनको दिलासा, उन्होंने सपोर्ट करना चाहिए कि इसके लिए भी किसानों को भी बोलना चाहिए कि जरूर थोड़ा धीरज रखिए, सब कुछ सरकार अच्छा करेगी। क्या बात है सर। प्रदीप पेशकर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद। ऑलवेज अ प्लेजर। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। So the BJP very confident suddenly of winning all 5 states, or at least doing well. That's what they say. But they're not expected to say we are doing badly. No political party is going to say that. प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की राजस्थान में पेपर लीक होता है, मगर अभी रिजल्ट लीक हो गया और रिजल्ट में स्पष्ट है कि बीजेपी इज विनिंग। रिजल्ट लीक हो गया, बीजेपी जीत रहे, कांग्रेस धूल छूमंतर ना, प्राइम मिनिस्टर जो भाषा है छूमंतर, कांग्रेस छूमंतर। That's what he said about Karnataka too. यस यस। लेकिन कर्नाटका में उल्टा ही हो गया, द कांग्रेस वन अ ह्यूज विक्ट्री। अब ये राजस्थान में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई, वो कहते हैं कि साहब ये लोग आगे बढ़ गए, कैसे आगे बढ़े मेरी समझ की तरफ बाहर है। वेरी फ्रैंकली आई मे बी रॉन्ग, लेट्स बी वेरी क्लियर, आई माइट बी रॉन्ग, आई डोंट नो, बिकॉज आई डोंट सी द बीजेपी विनिंग। वेरी फ्रैंकली, वेयर स्कीम्स क्या आपके पास? आपके पास कोई स्कीम नहीं है जी। कांग्रेस 5 वचन, 6 वचन, 11 वचन, 9 वचन लेके लोगों के सामने जा रहा है। जो एक एक स्कीम है तेलंगाना और राजस्थान में, मां लक्ष्मी स्कीम, फार्मर्स स्कीम, वुमन स्कीम, अम्मा इंदिरा अम्मा स्कीम, लैंडलेस को लैंड प्लस 5 लाख घर बांधने के लिए, सर स्टूडेंट्स को 5 लाख रुपया कार्ड, 200 यूनिट। अभी ये आपके सामने क्या है? व्हाट इज बीजेपी गो? एंड मध्य प्रदेश, डोंट फॉरगेट मध्य प्रदेश। ये 7 वचन, 8 वचन, 9 वचन, इन जितने तो, और तेलंगाना में तो बीजेपी प्रॉब्ली जो है 7% वोट से कंपटीशन में तो है ही नहीं। मध्य प्रदेश राजस्थान में कांटे का टक्कर है, 1% का 2018 के हिसाब से 1% इधर 1% उधर, उस ढंग से जा रहा है। But I think the Congress is doing well in all states. Very frankly, that's my opinion. I may be wrong. I may be proven completely wrong. Even though I doubt it. December the 3rd, this Sunday, we'll know. जी प्रदीप। गरीबों का, गरीब कल्याण योजनाओं को ठुकराना इम्पॉसिबल है। ये जो गरीब लोग हैं, गरीब के लिए कल्याण स्कीम्स, गरीब कल्याण स्कीम जी। आप बीजेपी के पास मेरे हिसाब से कोई ऑल्टरनेट इसके है ही नहीं। ये जो गरीब कल्याण and they have obstinately, stubbornly refused to play on that field, except towards the end, जो कहते हैं ना, the mountain has moved. They actually promised a gas cylinder at 450 rupees. बोले साल में 4 सिलेंडर, साल में 4 सिलेंडर देंगे तेलंगाना में, बोले 450 रुपए में वुमन के लिए जी 4 सिलेंडर देंगे। अब तो कितने में ना, ये एकदम वेग काइंड ऑफ, ये स्कीम के अंदर देंगे, वो स्कीम के अंदर देंगे, तो गरीब कल्याण स्कीम के सामने कोई टक्कर नहीं है जहां बीजेपी इज कंसर्न्ड। दे आर नॉट, and even the Jan Dhan, anyway we can keep talking about it, but let's go across to our old friend Mr.